ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਲੌਗਰ। ਗਾਇਸ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਮੈਡਮ ਦੇਖ ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਰਜ ਕਮਾਲ ਬਲੌਗਰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ। गाइस हम साइंस सिटी आए घूमने तो बैक आज ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ। तो हमें पता नहीं कैसे अपने पर ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਗਾਇਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਥੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ। गाइस ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਥੋੜਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਓ। ਆ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਚਲੋ ਬਾਏ ਗਾਇਸ। ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗੇ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਗੇਮ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਨਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗਾਇਸ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਨੀ ਡਰਾਵਨੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੇ ਚੀਕਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗਾਇਸ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ। ਮੈਡਮ ਵੀ ਦੇਖਦੀ। ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਧਰ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਆ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਲਿੱਪਸ ਕੱਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਬੰਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬੰਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਐਕਸਪਲੋਰ। मेरे दोस्त भी यादगार लिए फोटो खींच रहे गाइस ऐसे साइंस सिटी पहुंच गए अंदर। तो अंदर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एरोप्लेन भी इतनी बड़ी आयो इंट्रोडक्शन दे ये गाना। गाइस जहाज देखो, ये हमारा देश का बहुत बड़ा, ये हमारा एरोप्लेन है। हमारा ये देखो मैं बनाना। रुक जा। ਆਪਾਂ ਗਾਇਸ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਆਏ साइंस ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਠੀਕ ਆ। तू लेके आया। ਇੱਧਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। नजारे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ। गाइस साडा वीडियो कल्पना चावला ये कोई नहीं फटाफट दिखा दो गाइस। आ रखो गुल्ला के खड़ी गई देखो सेम आ साडे क्लास दा व्लॉगर। गाइस ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। गाइस आज कोई साडी जिंदगी वांग ਉੱਡ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਾਇਸ 3D ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਫੀਲ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਾਇਸ। ਟੁੰਡਰਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਰਫੀਲੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰਸ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਸ ਕਰਤਾ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਡੀਨੋ ਪਾਰਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪੇੜ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਮੈਥ ਚੇਂਜ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
लाइट घट कर ला पता ना लगे। हमें ये समस्या धीमी गति से बढ़ती महसूस हो रही है, पर वास्तव में ये बहुत ही तेज गति से बढ़ रही है। कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। ये बड़े बड़े कारखाने और उनकी ऊंची ऊंची चिमनियों से रोज निकलता काला धुआं इस बात का प्रमाण है कि ये हमारे पर्यावरण को कितनी हानि पहुंचा रही है। क्या आप जानते हो कि मुझे रात के समय जगमगाने के लिए आप कितनी बिजली का इस्तेमाल करते हो, और इस बिजली को बनाने में ना जाने कितना कोयला इस्तेमाल किया जाता है। वो काटना पड़ा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक कार 26,000 मील चलती है तो उससे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, औसतन उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड एक स्वस्थ पेड़ हर साल कम करता है और हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाता है। एक स्वस्थ पेड़ हर साल औसतन 13 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड सूखता है और आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, जिसके बगैर जीवन संभव ही नहीं है। अगर तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो इसका असर खासकर हमारे ग्लेशियर पर पड़ेगा। पूरे उत्तर भारत के मैदान को सींचकर उपजाऊ बनाने वाली गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो मध्य हिमालय का 30.2 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार 1842 से 1935 के बीच ये ग्लेशियर 7.3 मीटर प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता गया और 1985 से 2001 तक इसके कम होने की रफ्तार 30 मीटर प्रति वर्ष है। इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय में जमा पीने वाले पानी की बड़ी मात्रा का बेकार बहता जाना। पिघलते हुए ग्लेशियर से गंगा के पानी का स्तर बढ़ जाएगा, जिससे बाढ़ आने का खतरा हो सकता है और ये गंगा के तट पर रहने वाले 4 करोड़ भारतीयों के लिए गंभीर समस्या बन सकता है। और वो दिन दूर नहीं जब ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। और अगर ऐसे ही ध्रुवों पर जमा बर्फ और ग्लेशियर पिघलते गए तो उससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। समुद्र के स्तर में ये वृद्धि समुद्री तटीय इलाकों को अपनी चपेट में ले लेगी, जिससे इन इलाकों में दुनिया भर की 30% से ज्यादा रहने वाली आबादी को खतरा है और यही खतरा हम झेल रहे हैं। राजधानी और आपकी फिल्मी नगरी मुंबई भी खतरे में आ सकती है। अगले कुछ सालों में इसका काफी हिस्सा पानी में डूब जाने की आशंका है। मुंबई के तटीय क्षेत्र भारत की प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों को संभाले हुए है। अगर पानी का बहाव ऊपर की तरफ आता गया तो हमारी इन ऐतिहासिक इमारतों के डूब जाने का खतरा सबसे ज्यादा है और आप लोग इस अनमोल विरासत से वंचित हो सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन, जो बंगाल की खाड़ी में गंगा और सहायक नदियों से बना है, वो भी खतरे में है। यहाँ का लोचदार टापू समुद्र में पूरी तरह डूब चुका है। सुंदरवन, जो अलग अलग किस्मों के पेड़ पौधों, दुर्लभ जीव जंतुओं के लिए जाना जाता है, वो इस खतरे की चपेट में आ गया है। और यहाँ के रॉयल बंगाल टाइगर्स भी जलवायु परिवर्तन के असर को झेल रहे हैं। उनके रहने की जगह टाइगर रिजर्वायर का 5वां हिस्सा
पहले ही डूब चुका है, जिसकी वजह से हमारे देश के राष्ट्रीय जानवर को लुप्त होने में वक्त नहीं लगेगा। डूबते जा रहे समुद्री किनारे मैंग्रोव वनस्पति के लिए भी गंभीर खतरा है। जहां पानी के बाहर की जिंदगी के खतरे की बात हो रही है, वहीं इसके विपरीत पानी में रहने वाले जीव जंतु भी जलवायु परिवर्तन के असर को महसूस कर रहे हैं। बढ़ता तापमान समुद्र की सतह में फैले मूंगा जंगलों के लिए खतरनाक साबित होगा। मूंगा यानी कोरल एक सुंदर समुद्री जीव है, जिसके समुद्र में होने से समुद्र के भीतरी पर्यावरण के सही होने का अनुमान बखूबी लगाया जा सकता है। कोरल रीफ समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं का घर है, जो कि देखने में पौधे जैसे लगते हैं। धरती के ऊपर के पौधे से बिल्कुल अलग सुंदर पौधे, लेकिन पानी के अंदर। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अनियमित तापमान और प्रदूषण समुद्री सतह के जंगल में कहे जाने वाले कोरल्स और बाकी सभी जीव जंतुओं के लिए एक खतरा है। ये समुद्र के लिए अच्छा नहीं होगा। धरती पर आ रहे इस बदलाव से कितनी चीजें बदल रही हैं। आने वाले वक्त में संसार अनाज और खाने वाली चीजों की किल्लत को भुगत रहा होगा। इस गर्मी को केवल आप ही नहीं महसूस कर रहे, बल्कि पहाड़ों पर रहने वाले लोग और वहां की वनस्पति पर भी इसका असर पड़ रहा है। आप जानते हैं कि सेब, जो कि छोटी और निचली पहाड़ियों पर पाए जाते थे, जैसे कुल्लू, वो भी इस वातावरण के बदलाव से अब वहां नहीं उग पाते। अब सेब बड़े और ऊंची पहाड़ियों पर ही पाए जाते हैं और सेब की पैदावार दिन प्रतिदिन कम हो रही है। इस बदलाव का असर पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानों पर भी पड़ा है। बारिश का पैटर्न बदल रहा है, जिससे धान की पैदावार पर असर होगा। क्लाइमेट चेंज का असर विनाशकारी होगा। मूसलाधार बारिश के मौके बढ़ते जाएंगे। मौसम का आना जाना और रुख अनिश्चित होगा। दुनिया भर में तापमान बढ़ेगा। जौं का मौसम छोटा होता जाएगा। मौसमों में आने वाला ये बदलाव आपकी जिंदगी को सिरे से बदल देगा। क्या ये सब बातें आपको चिंतित नहीं कर रही? हालांकि जलवायु परिवर्तन को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसे धीमा और कम करने में आप बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आपको बस अपने पर्यावरण को लेकर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है और अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव लाने की भी जरूरत है। आपकी पीढ़ी बिजली और यातायात सुविधाओं के बगैर रह नहीं सकती, लेकिन आप इनके उत्पादन के तरीके में बदलाव ला सकते हैं और इसके लिए आपकी पीढ़ी के हाथों में है विज्ञान की ताकत। जैसे चमकते सूरज से दिन में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए आप कर सकते हो। आपकी छत पर अगर सोलर पैनल लगा दिया जाए तो इसे पानी को भी गर्म किया जा सकता है। बहने वाली हवा में भी बहुत ऊर्जा होती है। ये बहती हुई हवा विंडमिल को घुमाती है, जिससे बिजली पैदा होती है और प्रदूषण भी नहीं फैलता। ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं। इनके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के और भी कई साधन हैं, जैसे
हाइडल पावर जनरेशन, न्यूक्लियर पावर जनरेशन, टाइडल पावर, जियोथर्मल पावर, वेव एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल इत्यादि। अगर आप इन चीजों को ध्यान से समझें और अपने जीवन में इनका उपयोग करें तो आपको कितना लाभ हो सकता है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये न सिर्फ बिजली बचाएगा बल्कि आपके पैसे और पर्यावरण भी। आपके मोबाइल फोन, आईपॉड या ऐसे ही दूसरे बिजली के उपकरणों के चार्जर स्विच के स्टैंड बाय मोड में होने पर भी बिजली की खपत करते रहते हैं। इसीलिए इनके प्रयोग में न होने पर इन्हें हमेशा बंद रखा करो और जब भी आप कमरा छोड़ो अपना टीवी, वीडियो प्लेयर, स्टीरियो और कंप्यूटर बंद करना मत भूलो। अपने एसी के थर्मोस्टेट को 2 डिग्री तक बढ़ाओ। इस छोटे से कदम से आप हर साल 900 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की बचत कर सकते हैं। गाड़ियों के कम चलने का मतलब कम धुआं है, इसलिए बसों और रेलगाड़ियों को इस्तेमाल करें, कारपूल करें या साइकिल का इस्तेमाल करें और साइकिल से ही काम पर या स्कूल जाया करें। अगर ड्राइव कर रहे हो तो कोशिश करें कि कार क्षमता के हिसाब से चले। मिसाल के तौर पर अगर आपकी कार के टायर में हवा संतुलित रहेगी तो माइलेज बढ़ जाएगा। तेल की हर बचाई गई बूंद न सिर्फ आपके बजट को बल्कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को भी काबू में रखेगी। छोटी दूरियों के लिए परिवहन का एक साधन कभी पुराना नहीं होगा, वो है पैदल चलना। पैदल चलने से आप भी तंदुरुस्त रहोगे। जितना कागज आप इस्तेमाल करते हैं उसका 90% पेड़ों से आता है। लगभग 4 करोड़ पेड़ हर साल किताबों, कागज इत्यादि बनाने के लिए काटे जाते हैं और ये संख्या बहुत ज्यादा है। क्लास में 30 बच्चों की औसत से हर बच्चे की 8 कॉपियों के बदले एक 60 फीट ऊंचा पेड़ काटा जाता है। हर हाल में कागज की बर्बादी रोकनी होगी। इससे नया कागज बनाने, उसके परिवर्तन और रिसाइकलिंग के दौरान पैदा होने वाला प्रदूषण और ऊर्जा के इस्तेमाल को कम किया जा सकेगा। पेड़ों को बचाने के लिए चिट्ठी और पोस्ट कार्ड लिखने के बजाय ईमेल करना बेहतर है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हो, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी जीवाणु इसे मिट्टी में नहीं मिला सकते। और जब प्लास्टिक को खत्म करने के लिए जलाया जाता है तो इससे बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं। अगर इसे यूं ही फेंक दिया जाए तो इससे सीवर जाम हो सकते हैं। ये चलने वाले जानवरों के लिए भी हानिकारक है। ये सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि सब्जी या सामान खरीदने जाते वक्त कपड़े के थैले ले जाया करो और प्लास्टिक बैग में सामान लेने से मना करो। पानी बहुमूल्य है जिसे हम बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि जब पानी की जरूरत ना हो तो नल को बंद रखना ही अक्लमंदी है। ब्रश करते वक्त या फिर कार धोते समय जब तक जरूरत ना हो पानी ना चलाएं। पानी जीवन के लिए अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना बहने दें। क्या आप जानते हैं कि एक पेड़ कितने एसी का काम करते हैं? पेड़ हरे ईंधन है और 24 घंटे वातावरण को साफ रखने के लिए काम करते हैं। आप अपने घर को ठंडा रखने के लिए उन जगहों पर पेड़ लगा सकते हो जहां सूरज की रोशनी पड़ती है। साथ ही ब्लाइंड्स या पर्दे खींचकर आप एयर कंडीशनर की जरूरत को बहुत हद तक कम कर सकते हो। डिसिडियस पेड़ सर्दियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं। इससे उन दिनों में जब आपको गर्मी की जरूरत होगी सूरज की किरणें आसानी से आप तक पहुंच पाएंगी, वो भी बिना खर्च बढ़े। और गर्मियों में ये पेड़ आपको एसी के फायदे देते रहेंगे। और इस तरह आप सब मुझे
हरा भरा भी रखेंगे। रोशनी के लिए बिजली के लैंप्स के बजाय कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स यानी CFL घरों में लगाओ। CFL सामान्य बल्ब के मुकाबले 1/4 बिजली की खपत करते हैं और उनसे 8 गुना ज्यादा टिकाऊ भी होते हैं। अब तो बाजार में नए LED बल्ब भी उपलब्ध हैं, जिससे बिजली की खपत कम होती है। ये बिजली की बचत करने वाले और कम खपत करने वाली बिजली के उपकरणों के इस्तेमाल से आप मेरी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। एनर्जी ना हो तो नए की जगह रिसाइकिल सामान खरीदो। इससे इस चीज के बनने में लगी ऊर्जा का बेहतर उपयोग हो पाएगा। कागज, प्लास्टिक, अखबार और एल्युमिनियम केन्स को रिसाइकिल करने की कोशिश करो। जब भी आप अपना नया घर बनाएं, तो ग्रीन बिल्डिंग बनाएं, जहां प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, ऊपरी मिट्टी या ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। ग्रीन बिल्डिंग सूरज की रोशनी की दिशा और पानी की बचत पर केंद्रित है। वर्षा का पानी हार्वेस्ट किया जाता है, जिससे भूतल में पानी का स्तर बना रहे। घर भी इको फ्रेंडली रहेगा और बिजली की बचत भी करेगा। अगर आपने ऐसे कदम ना उठाए तो जलवायु परिवर्तन एक गंभीर खतरा है। सिर्फ आप इस खतरे को कम कर सकते हैं। सिर्फ आप। अगर अब भी होश ना आया तो हंसते फूलों को मुरझाने में देर नहीं लगेगी। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਥੀਏਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਦਾ ਸੱਪ ਦੇਖੋ ਗਾਇਸ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਖਿਚਾਉਣੇ ਆ, ਨਕਲੀ ਆ ਯਾਰ, ਇੱਧਰ ਖਿਚਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਖਿਚਾਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ। ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇਖ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗਾਇਜ਼। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਖੁਦ ਹੀ ਖਿੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਕੈਮਰਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਖ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਗਏ ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਮੇਰਾ। ਗਾਇਸ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਓ, ਕਦੇ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ। ਇੱਧਰ ਗਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕਿੰਨੋ ਦਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਊਂਠ ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਸਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਨੀ ਜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਰੀਲਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬੋਲੋ। समय की विशेषता घने और दलदल वन वाले स्थान थे। पर्मियन समय में पृथ्वी पर जलवायु। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਿੱਧਰ ਗਰਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊਂਠ ਬੜਾ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। समय के विकास के साथ यही छोटे सरीसृप यानी छोटे रेप्टाइल्स धीरे ही डायनासोर विकसित होते होते
मनुष्य धीरे धीरे हाथों आजाद हो विकास की इस लंबी यात्रा में मनुष्य ने बीमारियों का इलाज करना सीख लिया मृत्यु के बाद इंसान दफनाने और रंगों से उन्हें सजाने लगेगा। मनुष्य की इस विकास की यात्रा में चलते चलते आज हम सपना हो गए हैं, जहाँ आज का आधुनिक मनुष्य हमें दिखाई देता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम निर्माण की और विकास के बारे में बात करने जा रहे हैं। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਟੂਨ ਜਿਹਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾਇਸ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਈਆ I have an idea. Now this 3D camera will help you control your jetpack. Follow me. ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਾਮਮੰਡੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਾਮਮੰਡੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਾਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਝੂਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰੋ ਗਾਈਸ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਗਏ ਗਾਈਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੱਡੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਜੀਬ ਆਪਾਂ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੰਕਾਲ ਜੀਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਫਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨੱਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਕਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਗਾਇਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਗਾਈਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਸੌਂਗ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗਾਈਸ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਭਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਧਰ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੈਪਚਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਵਲੌਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਿਖੇ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਲੌਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਗਾਇਸ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਬੱਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗ